अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर अपनी बुक का 218 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ टॉपिक नंबर 9.19, यूज़ ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के यूजेस कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनके आ, सारा मतलब क्या उनका यूज़ है, क्या उनके एडवांटेजेस हैं, ये सारा मैं आज आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह हम साथ साथ इसको एक्सप्लेन मैं करती जाऊंगी। A galvanometer is an instrument for detecting a current. We are not going to discuss its internal structure and how does it work. We focus only on its uses. It is often used in null method to achieve precise measurement in electrical circuit. The null method involve adjusting the circuit until the galvanometer shows no deflection, that is a zero reading. This indicates that certain required conditions are met in a circuit. In this stage, the electric potential at both ends of the galvanometer are the same. Although a galvanometer has its own resistance, but at the null reading, its resistance does not come into play. The reason is that in this condition no current is passing through it. The null method is widely used in bridge circuits such as Wheatstone and potentiometer setups. As we studied in previous section, the null method is used to measure the unknown resistance in the Wheatstone bridge circuit. The galvanometer is connected between the midpoints of opposite side. The variable resistance is adjusted until the galvanometer shows no deflection. At this point, the bridge is balanced and the unknown resistance can be calculated using the ratio of the non-resistances. In potentiometer, null method is used to measure an unknown voltage by comparison with the non-reference voltage applied across the resistance wire of the potentiometer. A galvanometer and a jockey are used to make contact along the wire. At null point, the potential difference between the jockey and the end of the wire equals the unknown voltage. The position of the jockey uh, gives the measure of the unknown voltage. There are some advantages of using a galvanometer in null method. Number one, null method eliminates the effect of galvanometer internal resistance on measurement, resulting in more accurate readings. Number two, galvanometers are highly sensitive and can detect very small current of the order of 10 raised to power minus 6 ampere. Number three, no deflection indicates a direct and clear condition of balancing, making it easier to identify the null point. हमने जो टॉपिक अभी रीड किया, जिसकी मैंने अभी रीडिंग की है, डेट इज़ यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, व्हाट इज़ गैल्वेनोमीटर? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है, अगर आप यहाँ पे गौर करो। अ गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग अ करंट। मैंने ज़्यादा उसको सिंपल कर लिया, आपको बता दिया कि गैल्वेनोमीटर बेटे एक ऐसा डिवाइस है जिससे, एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, उसकी जो प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल डेफिनेशन क्या लिख देंगे कि अ गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया? ये हमारे पास क्या होगी, गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन होगी। आगे आपके पास आता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के यूजेस कौन कौन से हैं, किस तरह से हम उनको यूज़ करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वन बाय वन बेटे मैं आपको पैराग्राफ की फॉर्म में बताऊंगी, विद हेडिंग्स बताऊंगी। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आपका क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो आप लोग ऐसी हेडिंग दे के वहाँ पे जो है राइट करें। नंबर वन यहाँ पे जो हम हेडिंग देंगे, डैट इज़ यूज इन नल मैथड्स। क्या हेडिंग दोगे आप लोग? यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज़ ऑफन यूज इन नल मैथड। ठीक है, तो व्हाट इज़ नल मैथड, कैसे हम नल मैथड में इसको यूज़ करेंगे, सारा मैं भी आपको बताऊंगी। तो हमारा जो पहला यूज़ आएगा, जो पहले हेडिंग आप लोग दोगे, वो क्या दोगे, यूज इन नल मैथड्स। यूज इन नल मैथड्स। नल मेथड क्या है? आप पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज नल मेथड। ये सिंपल आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है बेटे। अ नल मेथड इज अ टेक्निक वेयर अ सर्किट इज एडजस्टेड अंटिल द गैल्वेनोमीटर शोज
नो डिफ्लेक्शन। जब गैल्वेनोमीटर जो है वो बेटे नो डिफ्लेक्शन शो करता है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तो इसका मतलब है उसकी रीडिंग क्या होती है, ज़ीरो होती है। ये वैसे ही मैंने आपको बताया था कि आपको पता चले इसका मतलब क्या होता है कि ज़ीरो रीडिंग जो है वो गैल्वेनोमीटर की होनी चाहिए। तो नल मेथड क्या हुआ कि ये एक टेक्निक है, ये एक मेथड है, एक टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्किट को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो ना करे। इज दैट क्लियर? अब आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अगर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है, डेफिनेशन आती है व्हाट इज नल मेथड, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अ नल मेथड इज अ टेक्निक वेयर अ सर्किट इज एडजस्टेड अंटिल द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। और जो नल मेथड है बेटे, ये क्या चीज़ इंडिकेट करता है, ये हमें इंडिकेट करेगा स्पेसिफिक कंडीशन, वो कंडीशन जिसमें आपका सर्किट जो है बेटे वो सेटिस्फाइड करेगा क्या चीज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द बोथ एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बोथ एंड्स पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरी मेन चीज़ आपने क्या यहाँ पे याद रखनी है कि नल पॉइंट पे जो है नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर है उसके थ्रू कोई भी करंट जो है वो पास नहीं होना चाहिए। और जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी मेजरमेंट को इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। और ये जो मेथड है, जो हम नल मेथड यूज़ करते हैं, ये मेथड हमें क्या अलाउ करेगा, इस मेथड का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है या इस मेथड की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसमें आप क्या राइट कर सकते हो कि दिस मेथड अलाउज हाई प्रिसीजन इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम नल मेथड यूज़ करते हैं। नल मेथड से हमें जो है हाई प्रिसीजन जो है वो मिलती है, यानी कि हमारी रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती है। क्लियर हो गया? तो गैल्वेनोमीटर का जो सबसे पहला यूज़ हमने अभी देखा वो कौन सा देखा, हमने यूज़ इन नल मेथड। गैल्वेनोमीटर को हम लोग नल मेथड में यूज़ करते हैं। व्हाट इज नल मेथड, मैंने आपको बताया, नल मेथड इज अ टेक्निक वेयर अ सर्किट इज एडजस्टेड अंटिल द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन या जीरो करंट। फिर हमने क्या पढ़ा कि ये चीज़ हम इंडिकेट करेगी कि स्पेसिफिक कंडीशंस हैं सर्किट में हमें सेटिस्फाइड करेंगी। स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बोथ एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर जो हैं वो सेम होने चाहिए। और जो नल पॉइंट है, जब हमारे पास नल पॉइंट होता है, हम जब बात करते हैं एट नल पॉइंट की, तो उस केस में नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर होगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो मेजरमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। और नल मेथड से हमें क्या चीज़ मिलती है बेटे, दिस मेथड अलाउ अस टू हाई प्रिसाइज मेजरमेंट, ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ये हो गया इसका पहला यूज। अब चलते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर के सेकंड यूज की तरफ, ठीक है। सेकंड यूज इसका है यूज इन व्हीटस्टोन ब्रिज। हमने क्या पढ़ा था, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ा के आई हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में भी क्या यूज किया जाता है बेटे, गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है। तो आप इसकी हेडिंग दोगे यूज इन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और गैल्वेनोमीटर कहाँ कनेक्ट होता है, बिटवीन मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड। दो जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट में हम लोग क्या चीज़ अटैच करते हैं, क्या चीज़ यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर। और कहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में बेटे यूज़ करेंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम एडजस्ट करते हैं और उस वक्त तक एडजस्ट करते हैं कि अनटिल हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। और जब यहाँ पे ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो नल पॉइंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस जो है उसको हम लोग नॉन रेजिस्टेंस से ईजिली जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने ये सारा फिनोमेना आपको डिटेल से पढ़ाया था। तो जो सेकंड यूज हो गया गैल्वेनोमीटर का वो क्या हो गया, यूज इन व्हीटस्टोन ब्रिज। थर्ड यूज की तरफ आते हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपके लिखा भी हुआ है। थर्ड जो इसका यूज है गैल्वेनोमीटर का वो क्या है, यूज इन पोटेंशियोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को हम लोग पोटेंशियोमीटर के अंदर भी यूज करते हैं। इसमें भी नल मेथड ही यूज़ होगा और नल मेथड को यूज़ करेंगे हम लोग अननोन वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अननोन वोल्टेज को हम कंपेयर करते हैं विद नॉन रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और जॉयकी जो है ये यूज़ की जाती है। और हम सिंपली क्या करेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना बिटवीन जॉयकी और एंड ऑफ द वायर
ऑफ अननोन वोल्टेज जो है उसको हम लोग मतलब मेजर करेंगे, उनका डिफरेंस देखेंगे, और जो पोजीशन होती है बेटे जॉकी की वायर के ऊपर, उससे हम लोग क्या करते हैं, अननोन वोल्टेज की रीडिंग को मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास तीन मेन यहाँ पे यूजेस आ गए। कौन कौन से? एक हो गया यूज इन नल मेथड, दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, यूज इन व्हीटस्टोन ब्रिज, तीसरा हमने क्या पढ़ लिया, यूज इन पोटेंशियोमीटर। क्लियर हो गया? तीनों की हेडिंग्स दो, तीनों के अंदर जो कुछ मैंने आपको भी समझाया वो आप राइट करो। इसके बाद अगला टॉपिक जो आपका आता है उसी के आगे, देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर इन नल मेथड। नल मेथड में गैल्वेनोमीटर यूज करने के कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है, कुछ फायदे हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। क्या है वो मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन। सबसे पहला फायदा नल मेथड में गैल्वेनोमीटर यूज करने का क्या है, एक्यूरेसी। क्या है बेटे? एक्यूरेसी। आप हेडिंग देके एक्यूरेसी लिख सकते हैं कि नल मेथड जो है एलिमिनेट करता है इफेक्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस को, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया? एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना। ठीक है, तो वो गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको एलिमिनेट कर देगा, और उसके रिजल्ट से क्या आएंगे कि हमें ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग जो है वो मिलेगी। तो पहला इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट या एडवांटेज क्या हो गया, एक्यूरेसी होगी। दूसरा एडवांटेज हमारे पास क्या आएगा, हाई सेंसिटिविटी। क्या आएगा, हाई सेंसिटिविटी। ये आपकी बुक में लिखी हुई है नंबर, अगर आपने हेडिंग देके लिखना है तो आप क्या हेडिंग दोगे, हाई सेंसिटिविटी। गैल्वेनोमीटर जो हैं दे आर हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स। गैल्वेनोमीटर जो हैं बेटे हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और ये बहुत 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 जो स्मॉल करंट होता है ना, बहुत कम करंट, उसको भी जो है इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। इवन इफ द उसका ऑर्डर जो है 10⁻⁻⁶ एम्पेयर, यानी कि इतना थोड़ा करंट, इतना शॉर्ट करंट भी हो तो इजीली ये उसको भी डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग दे सकते हो इसकी कि दे आर मतलब हाईली सेंसिटिव। गैल्वेनोमीटर जो हैं ये हाईली सेंसिटिव होते हैं, और ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या दी हुई है, 10⁻⁻⁶ एम्पेयर करंट हो तो उसको भी ये ईजिली डिटेक्ट कर लेंगे। तीसरा यहाँ पे इसका जो एडवांटेज आएगा वो क्या आएगा, क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैलेंस। ये आप लोग हेडिंग देंगे, क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैलेंस। यानी कि अक्सर आप जब भी हम गैल्वेनोमीटर का जिक्र करते हैं तो हम एक ही चीज़ पढ़ते हैं, नो डिफ्लेक्शन। यही वर्ड मैं बोलती हूँ ना, नो डिफ्लेक्शन, यानी कि नो डिफ्लेक्शन जो है वो शो गैल्वेनोमीटर में, ज़ीरो करंट जो है वहाँ पे हमें शो हो। तो जो ये जो टर्म है, ये जो कंडीशन है नो डिफ्लेक्शन बेटे, ये प्रोवाइड हमें करती है क्लियर इंडिकेशन किस चीज़ की, बैलेंस की, और ये हमारे लिए इजी कर देती है टू डिटरमिन द नल पॉइंट। हम नल पॉइंट को इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हमने क्या कर लिया इस टॉपिक में, हमने पढ़ा यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। मैंने तीन मेन यूजेस यहाँ पे बताए, कौन कौन से, यूज इन नल मेथड, दूसरा यूज हमने क्या पढ़ा, यूज इन व्हीटस्टोन ब्रिज, तीसरा हमने क्या पढ़ा, यूज इन पोटेंशियोमीटर। इन द एंड मैंने आपको क्या बताया, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग गैल्वेनोमीटर इन नल मेथड। कौन कौन से एडवांटेज थे? पहला एडवांटेज हमने पढ़ा एक्यूरेसी, दूसरा एडवांटेज मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटे, हाई सेंसिटिविटी, और तीसरा एडवांटेज मैंने आपको क्या बता दिया, क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैलेंस। क्लियर हो गया? इसी पेज के एंड पे अगर आप लोग चलें बेटे, जो हम टॉपिक अपना पढ़ रहे थे उसी के आगे आओ, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 9.20 थर्मिस्टर्स। ठीक है, ये हम अब स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। Thermistors. A thermistor is a heat-sensitive resistor. Most thermistors have negative temperature coefficient of resistance. That is, the resistance of such thermistor decreases when their temperature is increased. Thermistors with positive temperature coefficient are also available. In the thermistor, resistance decreases as the temperature increases. This is because increasing temperature provides more energy to the charge carriers, electrons or holes, enabling them to move more freely and thus reducing resistance. Thermistors are made by heating under high pressure semiconductor and ceramic made from mixtures of metallic oxides of manganese, nickel, cobalt, copper, iron, etc. These are pressed into desired shapes and then baked at high temperature. Different type of resistors are shown in figure 9.34. They may be in the form of bead, rod or washers. Applications of thermistors. Temperature measurement.
Thermistor are used in thermometer and electrical devices such as air conditioner, refrigerators, heaters, microwave ovens, incubator, etc. to monitor temperature. Thermistors with high negative temperature coefficient are very accurate for measuring low temperature, especially near 10K. The higher resistance at low temperature enables more accurate measurement possible. Thermistors have wide applications as temperature sensor, that is, they convert changes of temperature into electrical voltage, which is processed. Duly processed, for example, these are used in coolant temperature sensor in automobile engines to prevent the engine overheating and in digital thermometers. Temperature compensation. Thermistors are used in circuit where temperature changes could affect performance, such as in oscillators, battery charging circuits, and power systems. Inrush current limiting. Thermistors are used to limit the initial flow of current when a device is first turned on. Voltage divider. Thermistors are widely used as voltage divider as shown in figure 9.35. When temperature of a thermistor increases, its resistance decreases. This decreases the voltage drop across thermistor. As a result, the potential at point B increases. That can be used to trigger a circuit connected to it. In case of a fire alarm, the use of the thermistor turns the NOT gate low, and when it gets heated, the output of NOT gate goes high and turns the siren on. थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो गया ज़रा रीडिंग में, लेकिन इजी टॉपिक है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड किया, दिस इज़ नोन एज थर्मिस्टर, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया थर्मिस्टर। व्हाट इज़ थर्मिस्टर? थर्मिस्टर जो है बेटे ये हीट सेंसिटिव रजिस्टर होता है। क्या होता है? हीट सेंसिटिव रजिस्टर होता है। और ज़्यादातर जो थर्मिस्टर्स हैं बेटे वो हमें जो है ना उनका जो टेम्परेचर है वो हमेशा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, उसको हम लोग NTC कहते हैं। क्या कहते हैं? NTC। N नेगेटिव के लिए, T फॉर टेम्परेचर और C फॉर कोएफिशिएंट, यानी कि ज़्यादातर जो थर्मिस्टर हैं वो एग्जिबिट करते हैं क्या? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर, जिसका मतलब ये हुआ कि इनका जो रेजिस्टेंस है ना बेटे वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यानी कि जो थर्मिस्टर हैं इनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इनका जो रेजिस्टेंस है, थर्मिस्टर की बात हो रही है बेटे, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? इसके अलावा जो आपके पास अगर हम देखें, जब हमारे पास अगर थर्मिस्टर हो विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि जैसे पहले हमने NTC पढ़ा ना, वर्ड एक मैंने आपको वर्ड बताया NTC। एक और वर्ड आप अक्सर जगहों पे लिखा देखोगे PTC। PTC का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। NTC का मतलब क्या आता है? नेगेटिव टेम्परेचर। अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव टेम्परेचर की, ठीक है। अगर हमारे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं तो वो भी अवेलेबल हैं, और इसके जो रेजिस्टेंस हैं वो क्या होते हैं? वो इंक्रीज होते हैं विद टेम्परेचर। यानी कि दो चीज़ें आ गई ना हमारे पास। एक हमने क्या पढ़ ली है? एक हमने पढ़ ली है NTC, ऊपर वाला आपका जो पैराग्राफ था। नीचे वाले में हमने क्या पढ़ लिया? PTC, यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ने मैंने आपको क्या कहा कि उनका रेजिस्टेंस जो है एक में जब हमने नेगेटिव की बात मैं करी थी ना, मैंने क्या कहा था कि मोस्ट ज़्यादातर जो थर्मिस्टर होते हैं बच्चे वो शो करते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज होता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन कभी कभार थर्मिस्टर जो हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी शो करते हैं, ठीक है। यानी कि उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन इसकी परसेंटेज कम है। जो नेगेटिव है उनकी परसेंटेज क्या है? ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्मिस्टर के वर्किंग प्रिंसिपल की, कि इनका प्रिंसिपल क्या है, ये किस बेस पे इनकी वर्किंग हो रही है। तो जो रेजिस्टेंस है थर्मिस्टर की बेटे, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होती है थर्मिस्टर की वो डिक्रीज होती है एज इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि ये जो चेंजेस आ रहे होते हैं चार्जर कैरियर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हैं,
तो हम मोर एनर्जी जो है वो प्रोवाइड होती है इन चार्ज कैरियर्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन होल्स को जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इजीली जो है बेटे फ्रीली मूव करते हैं, और एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तो इनका रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये मेन पॉइंट है और यही बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। फिर आगे हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के, थर्मिस्टर की कंस्ट्रक्शन क्या है। थर्मिस्टर जो हैं बेटे इनको हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं कैसे, बाय हीटिंग अंडर हाई प्रेशर इनटू डिज़ायर शेप्स। ठीक है, अपनी डिज़ायर जो शेप्स हैं उनमें लाने के लिए इनको हाई प्रेशर के अंडर जो है वो हीटअप किया जाता है, और जिस तरह की शेप्स आप देना चाहते हैं उस तरह की डिज़ायर शेप्स इनको दी जाती हैं। कॉमन एग्जांपल शेप्स की आपकी बुक में लिखी हुई हैं यहाँ पे, जैसे कि हम इनको बीट शेप दे सकते हैं, और रॉड शेप दे सकते हैं, वॉशर जैसी शेप दे सकते हैं। और इनसे जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर सिरामिक जो हैं, जैसे कि जो सेमीकंडक्टर सिरामिक्स हैं दे आर मेड फ्रॉम मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड में आपके पास कौन कौन से आ जाएंगे, मैग्नीज आएगा, निकल आएगा, कोबाल्ट आएगा, कॉपर आएगा और आयरन आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने क्या चीज़ पढ़ ली, ये आपके पास टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर हैं, ये आपकी बुक में इधर देखो डिफरेंट शेप्स हैं इसकी, ये देखो ये सारे के सारे आपको थर्मिस्टर दिखाए हुए हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट ही इनकी शेप्स हैं। मैंने आपको बताया था ना अभी कि हम इनको मैन्युफैक्चर करते हैं अंडर हीटिंग, अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, और अपनी डिज़ायर शेप जो है वो इनको दे सकते हैं। बीट शेप भी हो सकती है इनकी, रॉड शेप भी इनकी हो सकती है। तो ये सारी डिफरेंट टाइप की शेप्स में आपको जो है थर्मिस्टर दिखाए गए हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज़ थर्मिस्टर। मैंने आपको बताया कि हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एनटीसी और पीटीसी पढ़ा। व्हाट इज़ एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और पीटीसी क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल में मेन जो चीज़ थी वो क्या थी कि रेजिस्टेंस जो थर्मिस्टर का होता है बेटे वो डिक्रीज होगा एज टेम्परेचर इंक्रीज। उसके बाद हमने पढ़ी इसकी कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ाई। ये लास्ट आपका जो पैराग्राफ है दिस इज कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम लोग आते हैं बेटे अपनी एप्लीकेशन कि उसके यूजेस क्या हैं, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है थर्मिस्टर की। वन बाय वन सारी मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी। सबसे पहली यहाँ पे जो एप्लीकेशन आ रही है, जो इसका यूज़ आ रहा है वो क्या आ रहा है, टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है, थर्मिस्टर को हम लोग यूज़ करते हैं वेरियस टेम्परेचर मोनिटरिंग डिवाइस, यानी कि जिन डिफरेंट टाइप के जो डिवाइसेस हैं, जहाँ पे ऐसे डिवाइसेस जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं ना बेटे, उनमें क्या यूज़ होता है, उनमें यूज़ होता है थर्मिस्टर। यानी कि आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो कि थर्मिस्टर्स आर यूज इन वेरियस टेम्परेचर मोनिटरिंग डिवाइसेस। कॉमन एग्जांपल उसकी कौन सी है आपके पास, थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर ही मेजर करते हैं। सबसे इजी और कॉमन एग्जांपल है इसकी थर्मिस्टर की, थर्मामीटर है। इसके अलावा एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर है, हीटर है, माइक्रोवेव ओवन है और इंक्यूबेटर है। ठीक है, और ये सारे डिवाइसेस ऐसे ही हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं। और इन सब डिवाइसेस में जो यूज़ हो रहा है इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ नोन एज थर्मिस्टर। तो पहला यूज़ इसका क्या हो गया कि थर्मिस्टर को हम यूज़ करते हैं इन वेरियस टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस। कॉमन एग्जांपल कौन कौन सी मैंने आपको दे दी, आपकी बुक में सारी लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई हैं बेटे, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, हीटर, माइक्रोवेव, इंक्यूबेटर। और सबसे द मोस्ट कॉमन एग्जांपल कौन सी आपके पास आती है, थर्मामीटर आती है। थर्मिस्टर जो हैं बेटे जिन जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के साथ हो, जिनको हम लोग एनटीसी थर्मिस्टर कहते हैं, ये पार्टिकुलरली जो है ज़्यादा एक्यूरेट जो है हमें मेजरमेंट देते हैं वेरी लो टेम्परेचर की, और स्पेशली अराउंड 10 के। यहाँ पे आपकी बुक में वैल्यू भी लिखी हुई है 10 के। और क्यों देते हैं, क्योंकि दे आर हाई रेजिस्टेंस टू लो टेम्परेचर। क्लियर हो गया, समझ आ गई। आगे हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट चीज़ आती है, जैसे ही आपके बुक में ना यहाँ पे पहली जो हेडिंग दी हुई है टेम्परेचर मेजरमेंट दी हुई है, आप यहाँ पे दूसरी हेडिंग दे लो। ये जो फर्स्ट 5 लाइंस हैं ये एक हेडिंग है, यहाँ से थर्मिस्टर के ऊपर आपने एक और हेडिंग बुक के ऊपर दे दो, डैट इज़ नोन एज टेम्परेचर सेंसिंग। क्या हेडिंग दोगे आप लोग यहाँ पे, टेम्परेचर सेंसिंग। ये सेंसर लिखा हुआ है ना, टेम्परेचर सेंसर। तो यहाँ पे हम सेकंड यूज़ की हेडिंग दे लेते हैं, दिस इज सेकंड यूज़
क्या, टेम्परेचर सेंसिंग, क्या कहेंगे इसको हम लोग, टेम्परेचर सेंसिंग कहेंगे। थर्मिस्टर जो है ये कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर चेंजेस को इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, थर्मिस्टर जो हैं ये कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर चेंजेस को, बेटे किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये यूज़ होते हैं किस में, इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इन मेकिंग टेम्परेचर सेंसर डिवाइसेस, ठीक है। और कॉमन एग्जांपल इनकी है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो है वो ऑटोमोबाइल जो इंजन हैं, जो गाड़ियों के हमारे इंजन होते हैं वहाँ पे भी जो है ये थर्मिस्टर जो है ये यूज़ किया जाता है, जहाँ पे इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है ओवर हीटिंग को, ठीक है। यानी कि गाड़ी जो है वो आपकी हीट अप ना हो जाए, तो उस ओवर हीटिंग को ये क्या करेगा, उसको ये रोकेगा, उसको प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा डिजिटल थर्मामीटर में भी ये सेंसर यूज़ होते हैं, डैट इज़ नोन एज टेम्परेचर सेंसर, यानी कि थर्मिस्टर जो हैं वो एज ए टेम्परेचर सेंसर भी बेटे यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे सेकंड हेडिंग मैंने पहले बता दी, आपने क्या हेडिंग ले लेनी है, टेम्परेचर सेंसर की। थर्मिस्टर जो हैं ये कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर चेंजेस को किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, मेकिंग देम इफेक्टिव टेम्परेचर सेंसर। कॉमन एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दी कि ऑटोमोबाइल के इंजन में यूज़ करते हैं ताकि इंजन जो है वो ओवर हीट ना करे। इसके अलावा डिजिटल थर्मामीटर में भी इसको यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास आता है अगला इसका यूज़, अगर हम देखें टेम्परेचर कंपेंसेशन। क्या अगला यूज़ आता है, टेम्परेचर कंपेंसेशन। व्हाट इज़ टेम्परेचर कंपेंसेशन, थर्मिस्टर्स को यूज़ करते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप के सर्किट्स में, किसमें, डिफरेंट टाइप के सर्किट्स में। याद, बस पहले ये मेन पॉइंट्स याद रखा करो, लिख तो बंदा खुद ही लेता है, ठीक है। थर्मिस्टर्स को हम लोग यूज़ करते हैं सर्किट्स में जहाँ पे बेटे ये स्टेबिलिटी को रिक्वायर करेंगे, और अगर टेम्परेचर में कोई वेरिएशन आती है तो वो ईजिली जो है वो क्या कर लेंगे, उसको कंपनसेट कर लेंगे, क्योंकि दे एक्ट एज टेम्परेचर कंपनसेशन। और जनरली ये कहाँ यूज़ हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो ऑस्किलेटर्स में यूज़ हो रही हैं, बैटरी चार्जिंग सर्किट्स में यूज़ हो रहे हैं, और जितने डिफरेंट टाइप के हमारे घरों में, बिल्डिंग्स में जो पावर सिस्टम्स लगे होते हैं उनके अंदर ही जो है ये थर्मिस्टर जो हैं वो यूज़ होते हैं। उसके बाद जो अगला यूज़ आ रहा है वो कौन सा आ रहा है आपका, इन रश करंट लिमिटिंग, ठीक है। इन रश करंट लिमिटिंग में किस तरह से ये यूज़ हो रहे हैं कि बेटे जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जब एकदम हम उसको पावर ऑन करते हैं, यानी कि आप स्विच ऑन करते हो किसी भी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब आप उसको ऑन करते हो तो वो क्या होता है कि दे मे ड्रॉ अ लार्ज इन रश करंट। लेकिन अगर हमने वहाँ पे थर्मिस्टर यूज़ किया हो तो वो लिमिट हो जाता है, यानी कि जो इनिशियल फ्लो ऑफ करंट है वो लिमिटेड हो जाता है ड्यू टू थर्मिस्टर, और उसकी वजह से जो आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सेफ हो जाते हैं। यानी कि अगर थर्मिस्टर यूज़ ना करेंगे, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वहाँ पे एकदम जो इनिशियल फ्लो है करंट का वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपने वहाँ पे थर्मिस्टर यूज़ किए हैं, ठीक है, तो जब आप टर्न ऑन करते हो स्विच तो इनिशियल करंट जो है वो क्या हो जाता है, वो लिमिट हो जाता है। इसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। उसके जो अक्सर आपने सुना होगा कि मैंने टीवी ऑन किया, टीवी जल गया, फ्रिज ऑन किया, फ्रिज जल गया। तो अगर ये वही चीज़ है, क्योंकि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो एकदम जो करंट का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर थर्मिस्टर वहाँ पे यूज़ हुआ हो उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में तो उसकी वजह से जो इनिशियल करंट है वो क्या हो जाता है, वो लिमिट हो जाता है। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं इसके लास्ट यूज़ की तरफ, डैट इज़ नोन एज वोल्टेज डिवाइडर। थर्मिस्टर को हम वाइडली यूज़ करते हैं एज वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे एक डायग्राम भी बनी हुई है, उस डायग्राम में भी सारा इसको एक्सप्लेन किया है। मैं आपको बताती हूँ कि जब बेटे थर्मिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये डिक्रीज जो होगा इसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज जो है बेटे वो ड्रॉप कर जाता है पूरे आपके थर्मिस्टर के अंदर, ठीक है। और एज ए रिजल्ट जो है वो आपका रेजिस्टेंस एट पॉइंट बी, ये जो पॉइंट बी है यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कॉमन एग्जांपल इस तरह के जो वोल्टेज डिवाइडर हैं इनकी कॉमन एग्जांपल, जहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर में जब थर्मिस्टर यूज़ करते हैं इनकी जो कॉमन एग्जांपल है ये क्या है, अक्सर बिल्डिंग्स में आपने जो बड़े बड़े घर हैं बल्कि वहाँ पे भी, लेकिन जो मॉल्स वगैरह होते हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं या जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे बेटे फायर अलार्म लगे होते हैं, ठीक है। उन फायर अलार्म्स के अंदर जो है वो थर्मिस्टर जो हैं वो लगाए होते हैं। वो थर्मिस्टर क्या करते हैं कि जब फायर अलार्म होता है तो थर्मिस्टर जो है टर्न कर देते हैं एनओटी गेट को, ठीक है। एनओटी गेट लो होगा
जब वो हीट अप होता है, ठीक है। और जो एनओटी गेट जो है उसकी जो आउटपुट है वो जब हाई होगी तो वो क्या होगा, मतलब जब आग लगती है तो वो क्या हो जाता है, वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से सायरन बजना शुरू हो जाता है, सायरन ऑन हो जाते हैं। और मतलब जब भी फायर लगती है ना, आग लगती है तो क्या होता है, सायरन ऑन हो जाते हैं ना, तो वो इसी बेस पे होते हैं। वहाँ पे क्या यूज़ हुआ होता है, थर्मिस्टर यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ फायर अलार्म तो थर्मिस्टर जो है वो टर्न ऑन करेंगे एनओटी गेट को, याद रखना। और सिंपल आपने बस इतना यही पढ़ना है, इसकी पूरी वर्किंग नहीं है एनओटी गेट की, आप बस यही करोगे कि थर्मिस्टर जो हैं वो टर्न करेंगे किसको, NO2 टी गेट को। और NO2 गेट जो है वो लो होता है जब वो हीट अप होता है, और आउटपुट जो उसकी होगी वो क्या होगी, वो हाई जब होगी तो आपका सायरन जो है पूरा, उसका जो अलार्म है वो क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा और आपको सुनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बेटे सिंपल, यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, आपको पूरा एक सर्किट दिखाया हुआ है, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर में हम पढ़े थे ना, तो ये देखो उस सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर में यहाँ पे क्या चीज़ प्लेस है, थर्मिस्टर प्लेस है। ये वोल्टेज है, ये पॉइंट ए, ये बी, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और गैल्वेनोमीटर, और ये आपके पास क्या है, बैटरी है, हाई रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ। आपको ये डायग्राम सिंपल बताई हुई है कि थर्मिस्टर जो है वो वोल्टेज डिवाइडर में किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो बेटे इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ लिया, व्हाट इज़ थर्मिस्टर, ये मैंने आपको पढ़ाया। मैंने आपको बताया कि थर्मिस्टर जो है वो हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है। उसके बाद हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा, वर्किंग प्रिंसिपल के बाद मैंने आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बताई, और कंस्ट्रक्शन के बाद हमने इसकी एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस में कौन कौन सी एप्लीकेशन की, नंबर 1 मैंने आपको बताया टेम्परेचर मेजरमेंट, नंबर 2 मैंने आपको बताया टेम्परेचर सेंसिंग, नंबर 3 हमने क्या पढ़ा, टेम्परेचर कंपेंसेशन, नंबर 4 हमने क्या पढ़ा, इन रश करंट लिमिटिंग, और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया, वोल्टेज डिवाइडर। आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। आज वाले दोनों टॉपिक इजी थे। आज हमने यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर और थर्मिस्टर जो है वो स्टडी किया है। इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरह से आप स्टडी करो। इनमें कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। बेटे यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर में हम लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।